हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और क्वेश्चन के साथ हम आ गए हैं। इसमें पूछा गया है, शो दैट द पॉइंट्स 1,7 एंड 4,2 एंड -1, एंड -4,4 आर द vertices of a square. So in this question we have to show whether these points, if we have to show these points are representing the vertices of a square. We know that uh, for a square we know a property of a square, that is, for a square all the sides should be equal and the diagonals of it should also be equal. So these are the two sufficient condition that we need to prove in order to prove whether the points are representing the square sides or not, square vertices or not. Okay, so हमारे पास चार पॉइंट दिए हैं, उसको हम सबसे पहले एक रफ फिगर की तरह बना देंगे चार पॉइंट को. So suppose करो this is your first point A, which is 1,7, and suppose this is your B, which is equal to 4,2, and suppose this is your C, which is equal to say -1, -1, and suppose करो D point है जो represent कर रहा है -4,4. तो this is your rough figure. Okay, this is your rough figure. Okay, now अब हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर स्क्वायर all sides should be equal, all side should be equal, and both diagonals should be equal, and both diagonals should also be equal, should also be equal. ओके, तो दोनों डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए और चारों साइड्स भी इक्वल होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूव वेदर these points are representing the vertices of a square or not. Okay, so how can we calculate the distance of all basically sides of a square? By using a distance formula. We have been given the coordinates of two points, so we can easily calculate the distance between them by using a distance formula. क्या कहता है distance formula? Suppose करो आप P एक point है x1, y1, और suppose एक और point है Q और जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2. ओके, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि इक्वल होता है पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. So this is your distance formula in order to calculate the distance between two coordinates point. Okay, so यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव में लिखेंगे स्क्वायर के लिए क्या क्या सफिशिएंट होने चाहिए प्रूव करने के लिए. सबसे पहले हमें चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है और दोनों डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है. तो मतलब क्या हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, दैट इज ए डी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू बी डी. तो ये दोनों डायगोनल्स जो है ना, इसको भी हमें इक्वल प्रूव कराना है. ओके, तो ये कंडीशंस हमारी सफिशिएंट होंगी स्क्वायर को प्रूव करने के लिए. ओके, सो सबसे पहले हम ए बी बी सी और सी डी और डी ए और ए डी और बी डी की वैल्यू निकालेंगे. तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर. सो ए बी की वैल्यू कैसे आएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी ये 4 माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 टू दी होल स्क्वायर, which is equal to, suppose 4 minus 1 is 3, 3 to the whole square is 9, plus 2 minus 5 is 2 minus 7 is 5, that is minus 5 to the whole square is 25. So this is equal to root over 34. And what about the value of BC? BC is nothing but your minus 1 minus 4 to the whole square plus minus 1 minus 2 to the whole square, which is equal to 25 plus 9, which is equal to root over 34. So BC की वैल्यू भी 34 आ गई. Can we calculate CD value? Yes, we can easily calculate by using same distance formula, which is equal basically minus 4 and minus of minus 1
to the whole square plus 4 minus of minus 1 to the whole square, which is equal to 3 whole square plus 5 whole square, which is equal to 34. So this will also be 34. Can we calculate the value of dA? Yes, we can also calculate the value of dA by using the same distance formula. So it is equal to 1 minus of minus 4 to the whole square plus 7 minus 4 to the whole square. So 1 minus of minus 4 is 5 square, that is 25, and 7 minus 4 to the whole square is 9. So 25 plus 9 is root over 34. So we can see that the value of AB, BC, CD and DA all are equal to root over under root of 34. So we can say that all sides of this quadrilateral आर इक्वल ओके। अब हमको प्रूव करना है कि डायगनल्स भी इसके इक्वल हो जाएंगे, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम इसके डायगनल्स की वैल्यू निकालते हैं। डायगनल कौन कौन से हैं? ए सी और ए डी। सो सबसे पहले हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं। सो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिगर से देख के बताओ। -1 टू द होल स्क्वायर एंड -1 -7 टू द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -1 to the whole square plus -1 -7 to the whole square, which is equal to 2 square plus 8 square, which is equal to 4 plus 8 square is 64. So 4 plus 64 is root over 68. ओके, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 68, और बी डी की वैल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई? बी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? -4 टू द होल स्क्वायर, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, एंड दिस इज 4 minus 2 to the whole square. This is 4 minus 2 to the whole square. So it is equal to 8, that is 64 plus 4, which is equal to 68. तो हम अगर ध्यान से देखें तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है, दैट इज ऑल साइड्स ऑफ अ quadrilateral आर इक्वल and diagonal of it is also equal. So we can say the quadrilateral ABCD is nothing but the vertices of a square. Okay, so we will write, since AB equal to BC equal to CD equal to DA and AC equal to BD, hence ABCD are the vertices of a square. Hence ABCD are the vertices of a square. तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 4 पॉइंट गिवन थे हमें, जो कि 1,7 एंड 4,2 एंड -1,-1 एंड -4,4 थे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें को शो करना था कि ये वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने स्क्वायर की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी को याद करा। उसमें था क्या कि फॉर स्क्वायर ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड बोथ द डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल। सो हमने प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड डायगोनल दैट इज ए डी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। सो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का हम फार्मूला जानते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला होता है, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर अंडर रूट के। ठीक है, सो इससे हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए की वैल्यू निकाला, जो कि सब इक्वल टू आ रही थी अंडर रूट 34। सिमिलरली हमने ए सी और बी डी की वैल्यू भी निकाली यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, उसकी वैल्यू आ रही थी अंडर रूट 68। सो हमने देखा कि ऑल साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है एक स्क्वायर को प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए कह देंगे हम कि ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर को। आई होप इस वीडियो में जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहें और पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।